Shukla, you might have heard about me. मेरी 4th रैंक आई है इस बार and I'm a medical science graduate. I'm an MBBS and I was doing MD which I left, so I don't have that degree. And this is my first attempt and my optional was also medical science. Anybody from medical science optional? Very rare but good. Okay, so I've been called कि मैं आपको अपना strategy बताऊँ. I used to sit here till December, as you all know. I am a student of the mains test series, not the classroom or PT, but a student of the test series. और I have given, I think 10 or so tests जो pre के बाद होते हैं, all of them, by coming to this very center, sitting where you're sitting. So मैं बताती हूँ. I just want a few things, to be made clear. First of all, as you all know, it is 50% luck and 50% hard work. So I believe I've been extremely lucky. तो आप प्लीज़ जो भी सुने ये मत सोचना कि if you do this you will get through, because there is a big aspect of luck in it. And number 2 is please have a little faith in what I'm saying. कुछ चीज़ें आपको काफ़ी unbelievable लगेंगी, but I can promise you that I'm being very honest. Okay, maybe I've been lucky, but try to believe what I'm saying. ठीक है? तो let's begin. When is the prelims? Prelims is on 7th. So we'll begin with prelims का छोटा सा. First of all, a few general things about prelims. सबसे पहले तो do not spend more than 2 months exclusively on prelims. ठीक है? This is one mistake that I've seen a lot of people make, कि वो सिर्फ prelims की तैयारी करते रहते हैं अगस्त तक, and then they think कि जब result आएगा then we'll prepare for mains. Do not do that. ठीक है? If you are a sincere student, if you are working hard, I can assure you you'll get through prelims. And I can say this because I was doing MD, in pediatrics till November 2014. I resigned from it in December. उसके बाद I came back. I started preparing for mains first. Someone told me कि पहले mains की तैयारी करो. And starting from May of 2015, I started preparing for prelims. And I got through prelims. ठीक है? And so this is what I want to say कि आप prelims की ज़्यादा tension मत लें. If you are sincere, you will get through, because it is a qualifying exam. Keep this in your mind. You will get nothing by getting 200 out of 200 in prelims. ठीक है? Now that CSAT is made qualifying, उसके लिए ज़्यादा कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. It's just maths plus minus English थोड़ा सा. It's 10th level का चीज़ है. तो do not worry about it. Do not go for special ये वो 10 minutes 30 minutes वाली classes. It's very simple, and anybody with a little bit of aptitude can get through paper 2 of prelims. Paper 1, which is GS, उसके बारे में in short what I can tell you is that आप जो भी पढ़ रहे हो, whatever you are reading, notes हो, books हो, spectrum हो, current affair हो, anything that you are reading should be supplemented with doing test papers. That is the most important advice that anybody can give you about prelims. मैंने जून जुलाई तक भी काफ़ी सारा मेंस का पढ़ा था, बिकॉज आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी, एंड उसने मुझे बोला था कि 23 अगस्त को प्रीलिम्स है, तो तुम क्या करो 1 अगस्त को जाओ, किसी भी 2 रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स के सारे पेपर्स ले आओ. सो गेट सम 40-50 पेपर्स एंड फिनिश देम इन 20 days, एंड दोज विल बी, दैट इज द प्रिपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग प्रीलिम्स. एंड दिस इज समथिंग वेरी ट्रू. इसीलिए मैं कह रही थी हैव अ लिटिल ट्रस्ट इन मी. आप कितना भी पढ़ लें, यू कैन लर्न होल ऑफ स्पेक्ट्रम, यू कैन लर्न ऑल ऑफ इकोनॉमिक्स, पूरा करंट अफेयर. इट विल नॉट बी मोर हेल्पफुल दैन सॉल्विंग अबाउट 20 टेस्ट पेपर्स. ठीक है? बिकॉज देर इज नो सिलेबस ऑफ प्रिलिम्स. अनलाइक मेन्स, प्रिलिम्स विल कैच एवरीथिंग विच इज अंडर द सन. सो इसके लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू हैव जॉइंड दिस इज़ अ वेरी रिप्यूटेड प्लेस ऑफ कोर्स. तो आप यहाँ के कोचिंग के पेपर्स ले लें, कहीं और के ले लें. यू हैव एनी अदर गाइडेंस, समबडी गिविंग यू पेपर्स, डू इट. ऑनलाइन मिल रहे हो, डू दैट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस रिगार्डिंग प्रीलिम्स. नंबर 2 दैट आई कैन टेल यू, सोर्सेज तो सबको पता होते हैं प्रीलिम्स के. व्हाट इज एसेंशियल इज कि आप एक बार कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट दे दें, ताकि यू नो कि आप कितनी नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? बिकॉज आई attempted some 80 questions, and when I was attempting, I think I felt कि मेरे सारे सही हैं. I found the paper very easy last year का जो हमारा आया था, and when I came back I realized कि मेरे 20-25 तो गलत थे. So this should not happen with you. So try to reduce your negative marking, क्योंकि मैंने कोई भी controlled setting में test नहीं दिया था. I did it all in my room.
कि कर रहे हैं, फिर आंसर देख रहे हैं, फिर उसको बुक की तरह पढ़ ले रहे हैं पेपर को, यू नो दैट वे. सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम मी. यू शुड गिव 1 or 2 टेस्ट इन कंट्रोल सेटिंग, या तो आप अच्छे से अपने को असेस कर लें उसी तरह घर पे बैठ के भी. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग प्रीलिम्स. प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, ठीक है. सो डोंट गेट टू स्ट्रेस्ड अबाउट इट. आपके चाहे 100 आ रहे हो चाहे 200 आ रहे हो, इट डजेंट रियली मैटर, right? Your aim is to get through the mains examination. That is what will get you in the final list. That is what will make you a topper. So I will talk more about that. ठीक है? Prelims is cool. Okay? Any content related अगर queries हैं तो वो तो you have teachers, you have guidance, ample guidance in Rajendra Nagar, more than required. So I can only say कि आप papers करें, it will sail you through. ठीक है? Then we come to mains. Mains के लिए what happens is when you are done with prelims, you are left with 3 odd months, and that is the toughest part of the entire year. That is the part जहाँ पे every day your strength will be tested as much as your knowledge, because every day you will feel that you are doing something wrong. आपका optional छूट जाएगा if you are doing paper 1, paper 2 छूट जाएगा if you are doing paper 4, essay छूट जाएगा if you are thinking of improving optionals. So that is one place जहाँ पे very specifically I will say work on your mind. Do not get bogged down. आप ऐसा मत सोचिए कि आपको हर दिन सब कुछ पढ़ना है. You come to give a test, you get maybe 60 marks in it. Do not get bogged down by that. Okay? It is a long process. चाहे कोई आपको कुछ भी कह दे, your rank and merit will be decided on 3rd of December. वही डेट है ना शायद मेंस की. बस तो उसके पहले कोई टॉप कर रहा है, कोई लास्ट आ रहा है, इट डज नॉट मैटर. होल्ड योर पेशेंस, होल्ड योर स्ट्रेंथ फॉर 3rd of December. दैट इज़ द डे यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड. मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ था. आई वॉज वेरी सिक्लूडेड. मैं टेस्ट देने आती थी, somebody used to say ये हो गया, ये बिल आया, ये एक्ट आया. आई यूज टू गो बैक एंड क्राई फॉर एन आवर. फिर मेरा एक दिन खराब होता था उसमें. डू नॉट डू दैट. एंड तक यू विल डू वेल. ओके, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ. And this is what I've been writing and saying to many people कि more than knowledge, this is a test of your strength, of your patience, of your personality. ठीक है? मेंस के जो नंबर होते हैं, मेंस का जो मार्किंग पैटर्न है, दैट इज समथिंग सो ओपेक कि मैं भी नहीं बता सकती कि मुझे क्यों मिल गए, है ना. वाई आई गॉट सिलेक्टेड, बिकॉज आई डोंट नो वॉट वर्क वॉट डिड नॉट. अभी नंबर्स आ गए हैं, इवन देन आई कैन नॉट टेल यू. आई विल टेल यू वन वेरी पर्सनल थिंग. पेपर 2 देने के बाद व्हेन आई केम बैक, आई वॉज क्राइंग. आई वॉज एक्चुअली क्राइंग इन माई होटल रूम जब मैं वापस आई थी कि ये तो मतलब बर्बाद हो गया. एंड यू नो व्हाट हैपेंस, यू स्पेंड ऑल योर टाइम प्रिपेयरिंग पेपर 2 and 3, राइट. 1 तो हार्डली कोई पढ़ता है, 4 तो ऐसे ही बहुत पता नहीं कौन पढ़ता है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एंड यू मे बी यू प्रिपेयर योर ऑप्शनल एंड यू प्रिपेयर 2 and 3. मतलब आई यूज टू डू दैट. और जब मेरा 2 वॉज अ पेपर इन विच आई वॉज close to tears while giving the paper, and I actually cried while coming back because I did not have an idea about 5 or 6 questions. बिल्कुल ही नहीं, कभी देखे ही नहीं टाइप के. and the rest of it तो वही टाइम मैनेजमेंट से ही थोड़ा स्क्रू अप हो जाता है. so that is what happened and I have got 96 marks in it, which is probably a very good score in paper 2 this year. people have not crossed 80, most of them, some have not crossed 90. so it is apparently the best. मतलब पेपर 1 से ज़्यादा नंबर मुझे 2 में आए. so this is what you should learn from my experience. this is the only thing that I am better at than all of you. it is not knowledge, it is just experience. take this experience from me. आपको कोई लगे कि you have done this horrible big mistake, it does not work out that way. ठीक है, many times. so what I should have done is I should have come back and read 3 and 4. मैंने उस दिन इतना टाइम बर्बाद किया क्योंकि I was crying because of paper 2. so don't do that. Now coming to the strategy. Mains में there is the first paper is an essay. You have to write 2 essays. Okay. Quick points about the essays. There is no ideal essay. किसी भी topic का कोई essay नहीं होता है. Just go through the topics जो आए हैं. You know, you will 2 friends can interpret that sentence differently. इतना subjective essay आता है paper में. Right? I wrote an essay on dreams and dreams that don't let India sleep. This was one essay. Now this is something so wide in scope, है ना. कोई भी it can be so different for so many people. For a doctor it can mean something different, for an engineer it's different. आपका कोई और optional है, आप उस side से सोच सकते हो. so for an essay what I did was, do not do it. I did not write any single essay.
मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे, मैं इतना सारा बाकी सब कुछ पढ़ना था. डू राइट अ कपल ऑफ एसेज, क्योंकि वहाँ पे जाके टाइम मैनेजमेंट बिकम्स एन इशू. तो एक बार ट्राई टू राइट 2 essays in 3 hours. ठीक है. अदर देन दैट नो स्पेशल प्रिपरेशन इज नीडेड. एवरी thing that you're preparing for in GS will help you in writing the essay if you're thorough with the newspaper, with articles, with frontline, with this that whatever you're reading. तो वहाँ पे बन जाएंगे वो जितने 1200,000 words मांगते हैं. You can do it. One thing that I did was कि एक दिन पहले when I went to that hotel कुछ करने को नहीं था, so I googled the quotes of some important people. Okay, you can like I googled Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Max Weber, और कौन था, मार्टिन लूथर किंग, लिंकन, कोट्स ऑन डेमोक्रेसी, ऑन नेशनलिज्म, ऑन नेशन बिल्डिंग, ऑन एजुकेशन. तो आई लाइक रीडिंग कोट्स. तो मैंने ऐसे 10-12 कोट्स लिख लिए, वो मैंने 10-12 बार पढ़ लिए कि अच्छा एजुकेशन पे ये बोला है, कोफी अन्नान ने पीस पे ये बोला है, किसी ने कुछ बोला है. होना ही होना है कि जो एसेज आएंगे यू कैन स्टार्ट वन ऑफ देम बाय दिस, क्योंकि डेमोक्रेसी, पीस, नेशन, यूथ, इनके अलावा कहाँ से आएंगे ऐसे, या वुमेन. तो दिस इज कॉल्ड यू नो दिस इज समथिंग स्मार्ट दैट आई थिंक आई डिड. तो डू दिस. एक दिन पहले लर्न अ फ्यू कोट्स, स्टार्ट योर एसे विथ अ कोट, एक्सप्लेन द कोट. इट गिव्स अ वेरी नाइस टच टू इट ना, कि आपने इतना पढ़ा है दैट यू नो व्हाट कोफी अन्नान थॉट ऑफ पीस, एंड इट इज जस्ट समथिंग दैट यू रेड यस्टरडे. बट दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर. और फिर आप एंड भी कर दो एक कोट से. इट विल गिव अ वेरी नाइस यू नो फीलिंग टू द पर्सन हु इज चेकिंग, आई सपोज. और अच्छा हो जाता है. ऐसे में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है. बी वेरी डाइवर्स अबाउट इट. बहुत सारे पॉइंट्स ले लो. ड्रीम है तो बस ये नहीं कि जो तुम्हारी ड्रीम है बस वही लिखाया 10 पेजेस में. टॉक अबाउट इकोनॉमिक ड्रीम क्या हो सकती है, सोशल क्या हो सकता है. ये ड्रीम है तो इसके 10 एस्पेक्ट क्या है, इफेक्ट्स क्या है, पहले क्या होगा. चार्ट दैट थिंग इन योर माइंड फॉर 10 और इज टू मच, 7 minutes और सो, एंड देन राइट. ठीक है. Anything you write will be of a wonderful standard, that I can assure you. इसलिए आप ऐसे मत करो. I have known people who have written things and cut and then written again. Do not do this. The person who is checking maybe has even less knowledge than you. You know, you've been preparing. तो do not do this. थोड़ा अपने में confidence रखना है और ये quotes वाला थोड़ा करना है. And be brief, use simple words. बस be very diverse about it. और optimistic conclusions. चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे टॉपिक बहुत ही सैड सा हो, वुमेन की हालत बड़ी ख़राब है, एजुकेशन कहाँ जा रहा है कंट्री का, यू शुड बी ऑप्टिमिस्टिक. ठीक है. सो ब्रिंग अप अ वेरी नाइस ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन एंड फिनिश ऑन टाइम. ऐसे का इतना ही है. मेंस 4 पेपर्स. पेपर 1 इज ऑल स्टैटिक है ना. हिस्ट्री, जोग्राफी, अ लॉट ऑफ क्या क्या डिजास्टर एंड समथिंग. And society is one thing which is very dynamic in paper 1. So the strategy should be static. आप prepare कर लो prelims के साथ. ठीक है. क्योंकि prelims के लिए तो पढ़ना ही है सारा. तो prepare it in a way कि आंसर भी लिखने आ जाए थोड़ा. ज्योग्राफी का ना कोई पूछ दे कि ओशन करंट पे 5 नंबर है तो you can write that, make that. क्योंकि prelims के लिए you are preparing. So very smartly जो parts overlap कर रहे हैं उनको आप अभी prepare कर रहे हैं अगस्त के पहले. Fine. Society and others, a lot of booklets, a lot of this thing, that thing. I would say किसी एक, if you respect or you have faith in some one coaching, get that material. और जो आपका न्यूज़पेपर की नॉलेज है that will add. और कोई ऐसे static questions actually never come in UPSC कि सोसाइटी क्या होती है, कितनी फैमिलीज होती हैं, जनरेशन क्या, these things do not come. The only thing that comes is आज की सोसाइटी में खप पंचायत आ गई हैं. What do you think of that? Yeah, what will you do for that? So that is something very relevant to you. ये हिंदू पढ़ने से या न्यूज़पेपर्स पढ़ने से you will know. You can write a decent answer. So I am just here to, you know, I have heard this quote कि simplicity is the ultimate sophistication. So I am just here to simplify the process. यहाँ पे आपको इतने लोग मिल जाएंगे who will complicate the process. Who will say कि मेंस में ये करना है, वो करना है, it's very difficult है, बड़ा ये है, वो है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. तो पेपर 1 में कंप्लीट द स्टैटिक पोर्शन विद द प्रीलिम्स. जो डायनेमिक है यू विल हैव इट, यू विल नो इट इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट. और आंसर राइटिंग तो आई विल टॉक अबाउट बाद में कि वो कितना इंपॉर्टेंस है टू इंक्रीज दैट. कमिंग टू पेपर 2, a lot of sources, everybody knows the sources. You have Lakshmikant, you have PRS, you have PIB, you have ministry की websites बहुत सारी, education, health, women, youth, कुछ भी जो हो रहा है. यू हैव करंट अफेयर मटीरियल्स फ्रॉम दिस कोचिंग, वेरी
nice, very concise and crisp material. Any other thing that you are doing? I used to follow Insights on India as well. एक साइट है, you might have known, जिसमें काफ़ी questions आते हैं, you know, daily they post up questions. I used to do that and that is also helpful. बाकी विजनाइज के करंट अफेयर्स हैं, you have your own हिंदू के notes and this and that. Paper 2 is all dynamic. Do not waste a single moment reading anything static for paper 2. This is something nobody tells you. वो जो मेंस का सिलेबस है ना, दैट सीम्स वेरी स्टैटिक कि उसमें लिखा हुआ है प्रेशर ग्रुप्स, तो फिर आप प्रेशर ग्रुप्स पे 10 पेज पढ़ते हैं कि ये कब ओरिजिनेट हुए थे, क्या हुआ. मेरे ख्याल से दैट इज़ नॉट राइट और स्मार्ट प्रिपरेशन. एक क्वेश्चन शायद आ भी जाए, आया भी था हमारे पेपर में, कुछ एक आया था प्रेशर ग्रुप से जो मुझे नहीं आता था बिकॉज आई हैड नॉट रेड द हिस्ट्री. बट बी वेरी रेलिवेंट इन द प्रिपरेशन. प्रेशर ग्रुप्स आए तो यू शुड नो द प्रेशर ग्रुप्स हैपनिंग राइट नाउ इन द कंट्री. वो क्या मांग रहे हैं. एनजीओ टॉपिक है तो नो अबाउट द एनजीओज जो आज चल रहा है. ओके ये नहीं कि कब बना था, क्या हुआ था, दैट इज इरेलीवेंट आई फील. सो ऑल ऑफ पेपर 2 वेरी रेलिवेंट, वेरी कंटेम्प्रेरी, वेरी डायनेमिक. कीप रिवाइजिंग. जो भी आपका सोर्स है, यहाँ के करंट अफेयर्स आर वेरी गुड. वो सोर्स है, चाहे PRS सोर्स है, चाहे आपका MPR सोर्स है, जो भी सोर्स है, कंटिन्यू विद दैट एंड कीप रिवाइजिंग टिल द एंड. बेस्ट एडवाइस फॉर पेपर 2. इंटरनेशनल अफेयर्स, डू नॉट स्पेंड आई विल से डेली का वो आप इंटरनेशनल अफेयर्स अगर हिंदू के पढ़ने लगो ना तो होगा कि आज जापान पहुँचे, फिर आज लंच हुआ, फिर कल डिनर हुआ, फिर एक बात हुई, फिर गिफ्ट एक्सचेंज हुआ. दैट इज़ समथिंग वेरी इरेलीवेंट. इंटरनेशनल अफेयर्स आई वुड से आप पेपर से मत करो. गो थ्रू दी कॉम्पिलेशंस इन दी एंड. और इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन नेशनल अफेयर्स तो आप ऑनलाइन न्यूज़ कोई रेलिवेंट सी पढ़ लो कि क्या हुआ भाई 10 दिन की विजिट में, एंड में क्या हुआ. 10 दिन का 10 दिन के पेपर पढ़ के उनके नोट्स बनाना इज नॉट रेलिवेंट. इन नेशनल अफेयर्स इज समथिंग वेरी ब्रीफ एंड समथिंग वेरी टू द पॉइंट. क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे आते हैं उसके. तो आई वुड से कि गो थ्रू द कॉम्पिलेशंस इन द एंड, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, एक अच्छा सा आंसर बन जाता है. इफ़ यू हैव सफिशिएंट 6-7 पॉइंट्स के नॉलेज तो यू कैन राइट अ गुड आंसर ऑन एनी इंटरनेशनल का क्वेश्चन. पेपर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे. Do that both for prelims and mains. Or key features of budget, again important. ARC very important for disaster management. And answer writing I'll tell you. Paper 4 very categorically I am saying it requires no special preparation. मुझे इतने सारे मेल्स आए about paper 4 की strategy बता दीजिए. I had no strategy of paper 4. I have got 106 marks which is average or more than average considering this year, whatever. I did not spend more than 6 days on paper 4 in the entire year. ठीक है, and 3 of those days were before prelims. जब मुझे पता ही नहीं था कि ethics होता क्या है तो I bought that book और मैंने थोड़ा सा पढ़ा. एक IPS officers की कोई book है which I had bought. और paper 4 के लिए I will just tell you one thing that I prepared for it by going through vision के test papers. Something very honestly I want to confess. I was a vision का टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट, सो दे हैड दिस टेस्ट पेपर्स. मई में कभी उन्होंने कोई एथिक्स के टेस्ट लिए थे. आई वेंट थ्रू दैट, आई वेंट थ्रू द आंसर बुकलेट. आई अंडरस्टूड कि आंसर लिखते कैसे हैं. कि अगर क्वेश्चन है यू आर द DM तो आंसर ऐसे आई एम द DM करके स्टार्ट नहीं करते हैं. यू स्टार्ट इट विथ ओके कंसिडरिंग द फैक्ट्स व्हाट आई वुड डू इन दिस सिचुएशन. दिस समबडी हैज़ टू टीच यू दिस ऑल्सो, यू नो, इफ़ यू डोंट गो टू अ कोचिंग. ये भी तो पता होना चाहिए. सो दिस इज़ वॉट आई लर्न फ्रॉम दी टेस्ट सीरीज. मैंने खुद से इसमें हार्डली कोई एफर्ट लगाया है. आई थिंक दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ योर एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ विच यू कैनॉट लर्न इन एन ईयर. एंड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ कॉमन सेंस. बहुत ही कॉमन सेंस के क्वेश्चंस आएंगे एथिक्स में. डू नॉट लिसन टू पीपल कि ये करो वो करो, 100 केस स्टडीज़ पढ़ के जाओ. इट वॉन्ट बी रिपीटेड, राइट. सो जॉइन एनी गुड टेस्ट सीरीज, गेट देयर पेपर्स, लर्न की लिखने का तरीका क्या है. अगर 4 ऑप्शंस होते हैं तो हाउ डू यू अप्रोच इट. डू नॉट गो फॉर एक्सट्रीम्स. बिल्कुल ही तोड़ फोड़ कर देनी है किसी आंसर में, ये नहीं करना है. और बिल्कुल ही बेनाइन हो जाना है, ये नहीं करना है. गो फॉर अ मिडिल पाथ. ठीक है. हाउ टू राइट वो आप किसी टेस्ट सीरीज से पढ़ समझ लेंगे. वॉट इज़ द वे टू अप्रोच, दैट इज़ ऑल दैट इज़ नीडेड. आई कैन टेल यू दिस, एथिक्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि गांधी जी का ये कोट था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट. This is not something that you can learn and this is not something that you should waste time upon. ये तो you go there, you see the quote and write about it. ठीक है.
So don't be worried about paper 4. It is a big this nightmare for students. I would just say be a little bold, be a little courageous. आपको जो लग रहा है आप वहाँ लिख के आओ. Do not go for extremes. वो लग रहा है तो then you are wrong. ठीक है? Do not go for extremes and choose a middle path. आप थोड़ा सा सोच लो कि you are the administrator, you know, you're not a student raising protests. तो अगर कुछ ऐसी सिनेरियो आता है, think of कि peace कैसे build होगा, consensus कैसे होगा, and go for a middle path. They even give you options. तो उसमें कुछ ज़्यादा सोचने की भी बात नहीं है. So that is all about mains. PT I will not talk about. Personality test, the most whimsical part. So वो छोड़ देते हैं. Mains answer writing, something very specific which I want to say is कि एक चीज़ जो मैंने की, which I think raised my bar, because I very honestly feel कि मेरा content बहुत अच्छा नहीं था. You know, I am a doctor. मैंने 14 के नवंबर से स्टार्ट किया था. I was not very well read as most of you here maybe. बट ठीक है, साल भर प्रिपरेशन थी तो थोड़ा बहुत तो आता ही है हर किसी को जब जाते हैं. बट व्हाट आई डिड वाज कि मुझे ना बड़े लोगों ने बोला था कि ये तो बेकार होता है, इंट्रोडक्शन लिखना, कंक्लूजन, ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी होता है, इतना टाइम कहाँ मिलता है. बट व्हाट आई डिड वाज मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ के कुछ मॉडल आंसर्स देखे और उसमें मैंने देखा कि दे ऑलवेज बिगिन विथ एन इंट्रोडक्शन एंड दे ऑलवेज एंड विथ अ कंक्लूजन, है ना, जो मॉडल आंसर्स होते हैं. सो आई थॉट कि ठीक है, कंटेंट तो वैसे भी नहीं होता मेरे पास, तो ये तो लिखी आऊँगी, यू नो, बिकॉज आई कैन राइट इंग्लिश और थोड़ा बहुत तो आता ही है, कोई भी क्वेश्चन है तो ये तो कराऊंगी. तो दिस इज़ वेयर दिस टेस्ट सीरीज हैज़ हेल्प मी एंड विच इज़ वाई आई से कि टेस्ट सीरीज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक. अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये हैं, आप उनको बचा के टेस्ट सीरीज में लगा दो और कोई किताबें भी मत खरीदो. गेट एन इंटरनेट कनेक्शन एंड जॉइन अ टेस्ट सीरीज, दैट इज़ इनफ. तो दिस इज समथिंग विच हैज़ हेल्प मी इनॉर्मसली. मैं यहाँ आती थी, फर्स्ट टेस्ट विच आई गेव, आई एंडेड इट इन 3 hours and 45 minutes. बिकॉज मैंने सोचा था कि अब लिख के तो आऊँगी, जब आ रहा है तो आई विल राइट एवरीथिंग, चाहे जितना टाइम लग जाए. सो आई रोट एवरीथिंग एंड आई ऑलवेज बिगैन विथ एन इंट्रोडक्शन. मुझे एक बार आई रिमेंबर विजन के टेस्ट सीरीज में आई गॉट दिस कॉमेंट कि इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ, it should not cover more than 1 page. But this is something which you know you should practice with it. You should learn कि अगर आपको 7 मिनट मिल रहा है and the question is something very basic, मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन है, you know 10,000 points on it, but you have to write an introduction. आप एक लाइन ज़रूर लिखें कि मेक इन इंडिया क्यों रेलिवेंट है आज की कंट्री में, आज की गवर्नमेंट में, आज के यूथ के लिए. Write it in 2 lines, begin your answer, finish it, give an optimistic conclusion. If this goes to fruition, if this coupled with skilling can be brought to a completion, India would soon join the rank of greatest nations in the country. Ended with this. Question ने ऐसा कुछ मांगा भी नहीं था. But this is something I feel added to my answers. I got 112 in paper 3, which is too much. And I was the most scared of economics, जो इस पेपर में आता है. मैंने कुछ ढंग से उसकी पढ़ाई भी नहीं की थी. आई थिंक आई जस्ट डिड करेंट अफेयर्स ऑफ इकोनॉमिक्स. वैसे जो स्टैटिक चीज़ें होते हैं तो आई वॉज वेरी शेकी ऑन दैट. वैसे वो अब आता भी नहीं है. बट दिस इज समथिंग विच आई वुड से कि आई एम प्रिटी श्योर मेरे जो नंबर आए, दिस हैज़ अ बिग रेलिवेंस टू इट. देयर वर क्वेश्चंस आई न्यू नथिंग अबाउट. स्पेस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन था, मुझे आता नहीं था, बट आई बिगैन विथ स्पेस टेक्नोलॉजी. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है कंट्री में आज रेलिवेंस. एंड में कि अच्छा ठीक है ये सैटेलाइट है, थोड़ा बहुत ही पता था उसके बारे में. व्हाट कैन बी डन, अगर इस सैटेलाइट में एक ये चीज़ भी आ जाए तो वी कैन इवन मैनेज दिस. एन ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन, अ गुड इंट्रोडक्शन, रेलिवेंट कंटेंट. बिकॉज देखो समथिंग विच इज़ वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कंटेंट ना हर किसी का सिमिलर होता है. मेक इन इंडिया पे आप क्या नया लिखोगे जो बगल वाला नहीं लिख रहा. आफ्टर अ पॉइंट व्हेन यू हैव रीच्ड प्रीलिम्स एंड यू आर अ सिंसियर एंड सीरियस स्टूडेंट, हर किसी का कंटेंट सिमिलर होता है ना यार. पीपल आर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे, पीपल आर लुकिंग एट द पीएम स्पीच और वो कुछ अपना सोच रहे हैं. तुम नया तो उसमें कुछ लिख ही नहीं सकते, वो तो गवर्नमेंट का क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है मेक इन इंडिया. तो दैट इज़ वाई दीज आर द एंसिलरी एस्पेक्ट्स ऑफ प्रिपरेशन विच यू शुड रियली स्ट्रेंथन. ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मेन्स. ट्रेन योर सेल्फ टू राइट इंट्रोडक्शन. चाहे आपको कोई बोले ये बकवास होता है, इससे कुछ नहीं होता, ये तो बेकार लोग लिखते हैं. नो, you are going, ever since I got selected, I have been asked to talk on some 20-30 places, platforms. You should know how to introduce yourself. You should know how to talk about the content and conclude your speech. This is something very relevant to the place where you are going. I feel, अब मुझे लगता है ऐसा. Yesterday I went to a place जहाँ पे
the Minister of State, Mr. Jayant Sinha had come. He gave such a wonderful introduction. So this is what I'm saying कि आप इसको irrelevant मत समझें. Your way of writing the answer is as important as the content of the answer. Work on that. More than working on prelims के 10,000 facts, work on that. ठीक है? So that is, I think, more or less. Paper 3 में very important is economic survey. Very important is writing answers. Again, either on insights या कोई online चीज़ कर रहे हैं आप या यहाँ classroom test दे रहे हैं. Very important. बहुत questions repeat होते हैं. Even from this test series, I think more than 50% questions were repeated in paper 3. So smart studying coupled with test series का बहुत सारा support. And what else in paper 4? Paper 4 मैंने आपको बता दिया. It requires थोड़ा सा स्मार्टनेस इन प्रिपरेशन. डू नॉट गो इन टू डिटेल्स ऑफ कि किसकी क्या फिलॉसफी थी. ऐसा मुझे लगता है बिकॉज हमारे साल ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कि व्हाट इज डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स, कौन सा क्या एथिक्स, किसके फादर कौन थे. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओनली व्हाट यू थिंक, व्हाट विल यू डू, व्हाट इज योर डिसीजन, ऐसी क्वेश्चन आते हैं. सो लर्न दैट फ्रॉम 2 or 3 मॉडल टेस्ट पेपर्स. आप अपना थोड़ा थिंकिंग थोड़ा सा डेवलप कर लें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर and go and bear your heart out. Ethics में one very important thing is कि time management is very important. क्योंकि पेपर खत्म नहीं हो पाता है. I was writing till the last moment but I could finish it. A lot of people I met had not even finished the paper. It is very big. तो ethics का टेस्ट आप कम से कम 2 तो देना ही देना है. And 4-5 हो जाए तो even better. क्योंकि वो तो ऐसा है कि सुबह उठो आ जाओ टेस्ट देने. No preparation required. And write it in 3 hours. ठीक है? So that is something very relevant. और मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट. आंसर राइटिंग इतना नहीं कि आप रोज लिख रहे हैं, बट येस 8 to 10 टेस्ट टाइम्ड करके, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आई वुड जस्ट कंक्लूड विद दिस कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और द मोस्ट हार्ड जो ऑब्स्टिकल आपके रास्ते में है वो आप खुद हो. मैं खुद थी अपने रास्ते में. आई ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज. मतलब वो पैसे मैंने आके फरवरी में दे दिए थे. इनकी एक टेस्ट सीरीज होती है ना मेंस की, फरवरी से. सो आई केम टू दिल्ली, आई पेड देम, आई वेंट बैक होम एंड आई डिड नॉट रीड, आई डिड नॉट राइट एनी टेस्ट. आई केम इन September एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग टेस्ट. तो यू आर द ऑब्स्टिकल इन योर वे. हैड आई डन इट फ्रॉम फरवरी इटसेल्फ, मुझे लगता है और कुछ अच्छा होता. राइट? सो डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट. If there is one message that you should take away, do not be afraid to start. Start now. Start with all your doubts. Start with fear. Start with pain. Start where you are with what you have. This is something I've written somewhere else also. आपको डर लग रहा हो, आपकी प्रिपरेशन ना हो, कल टेस्ट है, अब मैं प्रिपेयर करके दूंगा, ये तो इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ. यूपीएससी में यू विल प्रिपेयर फॉर एन ईयर लाइक मी, लाइक अ नर्ड, एंड यू विल गो एंड यू विल सी कि आपको 10 क्वेश्चन तो आते ही नहीं है. And this will happen. This will happen to you. That is why I am saying do not wait for the time जब आपका सब prepare हो जाए and you will go and give and you will know all the 20 questions of the test. This will never happen. This is not an exam of that sort. ठीक है? तो do not be afraid to start and you can do whatever is your dream, what I have done. If that is your dream, you can, you should, and if you are brave enough to start, you will do it. Okay? That is all. Thank you for listening to me.